how are you all? Hope you all are fine and safe at your home. Now, do you know today we are going to do question number 4. So, in this question, what you have to do? Let's read it. Write the plurals of the following words. Here you have to write plural form of singular. Means singular form is given, you have to write plural. One is given, you have to write for many. Understand? आपको many का लिखना पड़ेगा. So, how to do this? Let's see the first one. See, what is this? Which word is this? Apple. So, here we can say one, right? Apple. If you want to say about many, अगर बहुत सारे apple है तो क्या बोलेंगे? Apples. यहाँ पे देखो क्या ऐड हो गया? S, right? समझ में आया? After that, which word is this? Mango. M-A-N-G-O, mango. And here, if you want to write for many, अगर आप ज्यादा मैंगो है, बहुत सारी है, तो उसके लिए क्या करेंगे? हमने यहाँ पे देखो M-A-N-G-O तो है, बट लास्ट में हमने यहाँ पे E-S ऐड किया हुआ है. आई बात समझ में? तो देखो यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज देयर इज O एट लास्ट. ओके, तो जब O है तभी हम क्या ऐड करते हैं? लास्ट में E-S ऐड कर सकते हैं. नाउ SHEEP, शीप. तो शीप का प्लूरल क्या होता है? शीप. उसका शीप का शीप ही होता है. नाउ वुमेन. वुमेन जो है WAMAN. सो MAN, मैन को आप देखते हो, जब भी हम मैन का प्लूरल करते हैं तो MEN मैन होता है ना. तो यहाँ पे अगर वुमेन है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? विमेन. आई बात समझ में? WOMEN. यहाँ पे A है उसका E हो जाएगा, बाकी वो वर्ड है वो सेम रहेगा. नाउ BUS, बस. So what will be the plural of bus? That will be buses. BUSES, buses. Okay. Because I told you before, when there is sound S, SH, CH, X, ऐसे कोई words है लास्ट में, तो हम क्या ऐड करते हैं? ES. Now see, match. Which word? Which letters are there? CH. तो CH है तो भी हम लास्ट में क्या ऐड करेंगे? ES. So it will be matches. Bus, then buses. Match, matches. Glass, glasses. Double S. So you have to add ES. Glass, glasses. अब कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो इरेगुलर होते हैं, जिसमें S, ES नहीं लगता है. तो देखो ये चाइल्ड है, उसका प्लूरल क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन. CHILD, चाइल्ड. CHILDREN, children. Child, children. After that, MAN, man. तो यहाँ पे जैसे man होता है, MAN, man, उसका प्लूरल क्या होता है? MEN. So here you have to write MEN, man. Wolf. अब ये कुछ अलग है जो ऑलरेडी आपको आता है, आप लोग सीख चुके हो. जैसे लास्ट में F है और आपको उसका प्लूरल बनाना है. F है या FE है. तो अगर आपको इसका प्लूरल बनाना है तो क्या करेंगे? F को कट करेंगे और उसमें ऐड करेंगे VES. You have to cut F and add VES. So deer. Here double E is given, so sheep, that will be remain same, sheep. Now deer will be remain deer. आई बात समझ में? उसके बाद क्या है? TOOTH, tooth. तो डबल O है उसका हम क्या कर देंगे? डबल E, teeth. जैसे फूट है यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि फूट का क्या हो जाएगा? फीट. सो टूथ विल बी टीथ. नाउ STORY. सी Y is given, so Y will be cut and we will add IES. Remember that. If F will be there, so F cut VES, and I is given, then Y is given, then that you have to cut and add IES. ओके देखो यहाँ पे STOR तो लिखा है लेकिन Y नहीं लिखा. Y का क्या बन जाएगा? I और ES ऐड होगा. नाउ सेम LIFE. जैसे मैंने आपको पहले बताया, इफ देयर विल बी F और FE एट लास्ट, सो व्हाट यू हैव टू डू? FE कट हो जाएगा. सो विच लेटर्स आर लेफ्ट? टू लेटर्स, L and I. And which letters you have to add? VES. When there is F or FE at last, you have to add VES. Understand? Now hero. See, which letter is at last? O. So we have to add ES. Hero,
he rose. Now horse. See, there is also sound at last. S का sound आया ना, so you have to add HORSE, HORSES. आई बात समझ में? E already given. E तो already आपको दिया हुआ है, तो क्या डबल ही आ जाएगा? नो. अब जैसे मैंने आपको बोला कुछ इरेग्युलर भी होते हैं, जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है, वैसे माउस का प्लूरल माइस होता है. एक माउस है तो हम उसको MOUSE बोलेंगे और ज्यादा है तो माइस बोलेंगे. आफ्टर विच वर्ड इज दिस? FOOT, फूट. फूट का क्या होगा प्लूरल? फीट. जैसे मैंने आपको पहले बोला था डबल O है तो डबल E कर दिया. सेम हियर इन द स्पेलिंग डबल O इज गिवन. यू हैव टू राइट डबल E. फूट, फीट. नाउ BABY, baby. So here Y will be cut and what you have to add? IES. BABIES, babies. Now LEAF, leaf. So F will be cut and what you have to add? VES. Again if Y is given, so Y you have to cut and add IES, and if F or FE is given, so that will be cut, means F or FE will be cut and you have to add VES. ये आपको थोड़ा सा याद रखना है. F है तो VES and I है तो IES. Now book. What will be the plural of book? Books. Box का plural क्या हो जाएगा? Boxes. Now wish. Wish का plural होगा wishes. एंड फ्लाई का प्लूरल होगा फ्लाइज. FLIES, फ्लाइज. नाउ फेरी. इन द फेरी, सी विच लेटर इज एट लास्ट? Y. So Y will be cut and you have to add IES. Here in question number 5, see what is given? MCQs. Write the correct option A, B, C or D in the box. In this number 1, गोपू walked for a dash. गोपू था, आपने वो स्टोरी सुनी है ना डोंकी की, तो उसमें गोपू था वो किसके लिए काम करता था? वॉशरमैन, फार्मर, मिल्कमैन, टेलर. सो गोपू वर्कड फॉर अ फार्मर. FARMER, फार्मर. Farmer, that is option B. You have to write option B. Understand? It is already written, but while you will write in your notebook, write question and only write option, right? And answer you have to. Now number 2, Gopu carried heavy sack of dash. गोपू था वो एक डोंकी था, राइट? तो बहुत ही हैवी सेक उठाता था. तो उसमें क्या भरा होता था? सैंड एंड मड, व्हीट एंड राइस, ग्रास एंड कोर्न, या तो फिर कॉर्न एंड शुगर कैन. क्या भरा होता था उसमें? कॉर्न एंड शुगर कैन, राइट? आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 3. The farmer asked Gopu to see the world because he was dash. अब फार्मर ने गोपू को क्यों बोला कि गो एंड सी द वर्ल्ड? ऐसा क्यों बोला था? क्योंकि वो थक गया था और बूढ़ा हो गया था, इसलिए उसके जो मालिक थे उसने निकाल दिया कि अब तुम निकलो, क्योंकि वो किसी काम का ही नहीं रहा था उसके लिए. एक तो थक जाता था और बूढ़ा हो गया था, तो फार्मर को लगा कि ये अभी मेरे किसी भी काम का नहीं है, तो उसको निकाल दिया और गोपू को बोला कि तुम जाओ अब दुनिया घूम के आओ. नाउ गोपू वांटेड टू बिकम अ डैश. गोपू था वो क्या बनना चाहता था? एक्टर. सी विच स्पेलिंग इज दिस? ACTOR, एक्टर. नाउ डांसर, DANCER, डांसर. देन म्यूजिशियन, MUSICIAN, म्यूजिशियन. और सिंगर, SINGER, सिंगर. गोपू को क्या बनना था? म्यूजिशियन बनना था, राइट? इसलिए वो कहाँ जा रहे थे? मुंबई. सी नंबर 5, गोपू सेट ऑफ फॉर डैश. गोपू था वो किसके लिए?
निकला था, कहाँ जा रहा था? मुंबई, MUMBAI, मुंबई. Let's read the spelling. We know now Gopu was going to Mumbai, but other words, other spellings you have to see. And the next is the ball of fur on the road was a dash. तो आपको याद है ना, when Appu was going, so he saw something on the road. What was that? पहले तो उसको लगा कि that is a ball of fur, but वो कौन था? डॉग, डोंकी, कॉक या कैट? जो फर का बॉल जैसा दिख रहा था ना रोड पे, वो क्या था? वो एक कैट थी. तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा? डी. नाउ व्हेन द म्यूजिशियन रीच्ड अ हाउस दे वर डैश. अब देखो, जब भी म्यूजिशियन थे वो जब वहां पे पहुंचे हाउस के पास, तो वो कैसे थे? टायर्ड एंड स्लीपी. क्या वो लोग थके हुए थे और नींद आ रही थी? टायर्ड एंड हंग्री, हंग्री एंड थर्स्टी, hungry and sleepy. तो here you can see which option is tick marked. Option B. उसमें क्या लिखा हुआ है? Tired and hungry. क्योंकि उसने बहुत लंबा रास्ता चल के आए थे, इसलिए वो लोग थक भी गए थे और उन लोगों को भूख भी लगी थी. Now what did the musicians see on the table? और एक तो वो लोग थके हुए थे, उन लोगों को भूख भी बहुत लगी थी, और उन लोगों ने टेबल के ऊपर क्या देखा? ए. फ्रूट्स, बी. वेजिटेबल्स, सी. ड्रिंक्स एंड डी. फूड. फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ड्रिंक्स एंड फूड. उन लोगों ने क्या देखा टेबल के ऊपर? फूड देखा. दैट इज ऑप्शन डी, फूड. Now number 9, the people in the house thought that they were dash. और उन लोगों ने जब गाना स्टार्ट किया तो पीपल को क्या लगा कि वो क्या है? रोबर्स है. ROBBERS, रोबर्स. डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोबर्स? जो लोगों के जो पैसे और ज्वेलरी है वो छीन के लेके जाते हैं ना, लुटेरे, रोबर्स. वो या घोस्ट मतलब भूत, पेट्स एंड वाइल्ड एनिमल्स. जब वो साथ में गाने लगे तो पीपल को ऐसा लगा कि यहाँ पे तो भूत आ गया, इसलिए वो भाग गए. एंड नाउ द नेक्स्ट. देखो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? नंबर 10, द पीपल इन द हाउस वर डैश. और जैसे ही उन लोगों को ऐसा लगा कि यहाँ पे तो कोई भूत आ गया है, तो वो लोग कैसे बन गए? ब्रेव, बहादुर. पजल्ड, क्या वो सरप्राइज हो गए? या स्कैर्ड. स्कैर्ड का मतलब क्या होता है? डर जाना. या वो सब डर गए थे. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? सी, वो सब डर गए थे. अंडरस्टैंड? तो नाउ क्वेश्चन नंबर 6, आंसर द क्वेश्चंस. फॉर whom did गोपू वर्क? गोपू था वो किसके लिए काम करता था? तो हमने अभी पहले ही ऑप्शन में देखा ना, गोपू वर्कड फॉर अ फार्मर. नाउ नंबर 2, why did the farmer ask गोपू to go and see the world? फार्मर ने गोपू को क्यों बोला कि जाओ और दुनिया घूम के आओ? Because he was tired and old. क्योंकि वो थक गया था और बूढ़ा हो गया था. Right? But you have to write full sentence. The farmer asked Gopu to see the world because he was tired and old. क्योंकि वो थक गया था और बूढ़ा हो गया था. Number 3, What did गोपू want to become? गोपू था वो क्या बनना चाहता था? गोपू wanted to become a musician. गोपू एक म्यूजिशियन बनना चाहता था. Now, who joined गोपू? गोपू के साथ कौन कौन गया? सी, जब वो गया था और रास्ते में उसको एक डॉग मिली, कैट मिला एंड कॉक. सो अ डॉग, a cat and a cock joined Gopu. Understand? Now what did the people in the house think? जो घर पे लोग थे उन लोगों ने क्या सोचा? क्योंकि जब ये म्यूजिशियन मतलब ये चार, कौन कौन चार? डॉग, कैट,
कॉक एंड गोपू डोंकी, ये सब 4 गाने लगे एक साथ, तो लोगों को क्या लगा कि यहाँ पे कोई भूत आ गया है। सो द पीपल इन द हाउस थॉट दे वर घोस्ट, जो घर के अंदर लोग थे उन लोगों ने सोचा कि ये तो भूत आ गया है, इसलिए वो डर के मारे भाग गए। दे वर स्कैर्ड, वो डर गए थे। So here we have completed revision of your unit number 8, and today's revision is singular plural, MCQs and question answers. But it is not possible to write in your notebook in one day. एक दिन में आप इतना सारा नहीं लिखोगे. So what you have to do? You have to complete this in 2 days. आपको ये homework है वो कितने दिन में खत्म करना है? 2 दिन में खत्म करना है. Understand? Thank you.